अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन हमने प्लान किया है दिस इज 24 October number 2025 qualitative analysis question 3A. To a 1 centimeter depth of FP4 in a boiling tube, slowly add 1 centimeter depth of dilute nitric acid. Stir gently until the reaction is complete. Use this solution for your test. Record. Select reagents to identify which sodium halide is present. Which sodium halide is present. So we need to identify the sodium halide. It can be sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide, whatever. We are going to identify it. Record details of the reagents used in your observations. Identify the sodium halide that is present as an impurity in FB4. The formula of the impurity is like impurity sodium halide is. So let's perform what is requested to do. 1 centimeter depth of before boiling tube, slowly add 1 centimeter depth of dilute nitric acid. 1 centimeter depth of first I will rinse the boiling tube. 1 centimeter depth of FB4. Here I took FB4. Approximately 1 centimeter depth of FB4. Slowly add 1 centimeter depth of dilute nitric acid. मैंने नाइट्रिक एसिड अपने हाथ में लिया और नाइट्रिक एसिड की एडिशन करते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन बनती है. देखो brisk effervescence है. No more effervescence. Effervescence produced, no precipitation, clear, colorless mixture or solution obtained. अच्छा जी. So the part is 1 centimeter depth of nitric acid, stir gently until the reaction is complete. Use the solution for your test. Select a reagent to identify which sodium halide is present. Record details of the reagents used in your observation. Identify the sodium halide. This is the mixture in which we are going to perform some tests to identify which sodium halide is here in it. So, test, observation, 1 centimeter depth of sample, added a few drops of AgNO3, sodium nitrate. We know sodium nitrate is the only reagent we use for the identification of halides. And if we are going to confirm it, so added ammonia solution in excess. So this is for the confirmation to check the solubility of any halide ion. अच्छा जनाब देखिएगा, इस तरीके से हमने एक सैंपल बना लिया, अपना टेबल बना लिया. 1 centimeter depth of sample, add a few drops of AgNO3, dotted line, add NH3 aqueous in excess. और यहाँ पे हम लिख देंगे the formula of the impurity is sodium. सोडियम के साथ जो भी इसका halide होगा, we will write that. Okay. This solution is to be used. I need a rinsed test tube.
सैंपल 1 सेंटीमीटर डेप्थ, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर लेते हैं और फॉलो कर देंगे एक्वस अमोनिया से। अच्छा जनाब, ये सिल्वर नाइट्रेट से प्रेसिपिटेट के लिए इट्स वाइट और ऑफ वाइट। मैंने कहा था कि जब भी प्रेसिपिटेट का आपको रिजल्ट देखना हो, आपको उसके ऊपर डाउट हो, सो यू जस्ट वेट and first add ammonia so that you can easily identify it is white or off white. If it is dissolved, if it gets dissolved, mean it is white. If it does not, mean it is off white. And yellow is entirely different. See, clearly dissolved. कंप्लीटली क्लियरली डिसॉल्व हो गया, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाइट पीपीटी प्रोड्यूस्ड, अब मैं इसको अगर डिसॉल्व हो जाता है देन आई विल राइट इट वाज व्हाइट प्रेसिपिटेट। सो ऑब्जर्वेशन विद सिल्वर नाइट्रेट, white suspension obtained. What happened with the addition of ammonia? White PPT dissolved. Okay, formula of the impurity, we know the observations lead to the conformation of iodide. So the compound is, the impurity was sodium iodide, NaI. Okay, suggest why it is necessary to add the nitric acid to FB4 before carrying out the test in A1. Why did we add nitric acid before adding silver nitrate? We know one thing, silver nitrate is a very sensitive chemical. It gives white precipitates, light white precipitates with carbonate, with sulfate and most of these ions. In air we have carbon dioxide gas that keeps dissolving continuously in the solution which have been placed in the opened containers. So if they are dissolved, if CO2 is dissolved in the liquids, then the silver will give white precipitate with that carbonate, and those white precipitates can mislead us to identify the correct the anion. So when we add acid before adding silver nitrate, we just make sure that there is no more carbonate ion, dissolved carbonate ion in the sample. So that is the simplest answer. Suggest why it is necessary to add the nitric acid to FB4 before carrying out your test in A1 to remove any dissolved carbonate ion in the sample. See. अच्छा जनाब, ये वाला बात क्लियर हो गया, ये वाली बात भी क्लियर हो गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. Next step is FB7 contains a metal cation which is listed in quantitative analysis notes. So yeah. Place half the sample of FB7 in a hard glass test tube. Heat gently at first and then more strongly. अच्छा, heating का अभी मेरे पास मैं ऑब्जर्वेशन परफॉर्म नहीं करता आपके सामने, बर्नर थोड़ा सा दूर है. I just perform the observation, I'll perform the test and I'll write the final and initial observations of the tube. Then I'll write it here. अच्छा, अभी इससे पहले हम ये वाला पार्ट परफॉर्म कर लेते हैं. Use a 25 cm measuring cylinder to measure 20 cm of FB1. Place the remaining sample of FB7 into a boiling tube and add portions of FB1 from the measuring cylinder until all the FB7 has reacted. Stir until the reaction is complete. Give the solution for test.
अच्छा जी, ये सारे काम में करने हैं, ये वाला पार्ट एटलीस्ट मैं परफॉर्म कर रहा हूँ. 25 cm measuring cylinder. Here is 25 cm measuring cylinder. Let us rinse it. Here, I rinsed. Okay, what to do next? Measure 20 cm of FB1. Here I have FB1. It's 20 cm cube in a measuring cylinder. Okay. Place the remaining sample of FB7 in a boiling tube. Here's another boiling tube. The remaining sample of FB7. It's lot. Remaining FB7. I need bit for test that heating one, first test. So I took part in a boiling tube and I kept the rest for test one. Now slowly add acid and acid. Effervescence. Clear. Effervescence. These effervescence are of carbon dioxide. Make sure and do remember this observation. If they are brisk effervescence, it's of carbon dioxide. So the compound contain carbonate ion. Keep adding until the reaction is complete. As long as carbonate ion is in the sample, it will keep fizzing. So remove all the carbonate ion. Make sure there is no fizzing with the addition of acid. Yeah, the fizzing is over. No fizzing with the addition of acid. Oh, it's very slow. There is some fizzing, very slow. There is the remaining sample of final boiling tube at portion of FB1 from the remaining cylinder. Ensure the reaction is complete. Record your observation. Okay. You just ignore the bottom and see the tube. What did I observe? I can say brisk effervescence of a gas that I told you that if it is carbonate, so it will produce carbon dioxide gas. A gas produced that turned lime water milky, you may write the observation because it's purely of carbon dioxide gas, and a green solution obtained. Brisk effervescence of a gas that turned lime water milky, a green solution obtained. ऐसे मैं लिख दिया इसको, है ना?
चीजें समझ में आ रही होंगी। अगली बार पे चलते हैं। कैरी द फॉलोइंग टेस्ट फॉर टेस्ट यूज ए 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म इन B2। B2 ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है अभी ग्रीन कलर का, वी आर सपोज टू परफॉर्म ऑल दीज टेस्ट ऑन दिस सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस अमोनिया, पीस ऑफ एल्यूमिनियम, देन FB8। तो ये 3 टेस्ट परफॉर्म करते हैं इसके ऊपर और देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन हम बना पाते हैं। द फॉर्मूला ऑफ द मेटल आयन इन FB7। फाइनली वी नीड टू कंक्लूड द मेटल आयन इन FB7। अच्छा, एक बात याद रखो बच्चों, ये जो सॉल्यूशन अगर ग्रीन और ब्लूइश कलर का बनता है तो इसमें मोस्टली कॉपर के होने के चांसेस होते हैं। तो अगर ये हमारे बैकग्राउंड में चल रहा होगा कि इसमें कंटेन कॉपर, तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, हमें उसके मुताबिक रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, या हम रिजल्ट्स को एटलीस्ट माइंड में रखेंगे तो आसानी होती रहेगी। अब मैंने क्या किया, आई जस्ट टुक 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ द सैंपल इन अ टेस्ट ट्यूब हियर। इट्स 1 सेंटीमीटर डेप्थ। अच्छा, 1 सेंटीमीटर डेप्थ लेने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है। ड्रॉप्स। देखो बच्चों कितना क्लियर ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट आया है। ड्रॉप पे देख रहे हैं, मजीद क्लियर करता हूँ। ये ब्लू प्रेसिपिटेट है और क्लियर करता हूँ। ऑब्जर्व इट नाउ। अब देखिए जनाब, क्लियर ब्लू प्रेसिपिटेट आया। अच्छा, अब blue precipitates, we know one thing, that copper gives blue precipitate. Add aquasodium hydroxide, kept a bit in, obvious और ज्यादा क्लियर हो गया। Blue precipitate will remain insoluble in excess. We know one thing, it's of copper. So the observation is blue PPT. Repeat with ammonia. Again, part of the sample from B2. Here I have aqueous ammonia in my hand. See, a few drops. I guess the quantity of sample was lesser, that's why. With ammonia, because it contained HCl in it, that's why I'm facing this problem. There's HCl in it. It must contain blue PPT first and then solubility. It has to show the solubility. What I'm doing, I'm taking the sample again. For that, FB7, it's for me. For myself, I'm repeating this test. FB1, हमने इसे FB1 में रिजॉल्व किया था। FB1 में रिजॉल्व किया था इसे। मैं सैंपल को वापस से अपने लिए सा बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि उसमें एक्सेसिव अमाउंट ऐड हो गया था एसिड का, और अमोनिया क्योंकि वीक बेस है तो पहले बेचारा एसिड से रिएक्ट कर लेगा, उसके बाद कहीं जाके आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट देगा। शायद आप लोग बात को समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा जी, देखिए ये मैंने FB1 के साथ उस सॉलिड का वापस से मिक्सचर बनाया। मैंने इसका मिक्सचर बना लिया।
अभी इस पार्ट को ऑब्जर्व कीजिए जरा, कि थोड़ा सा मिल्की सा है, हल्का सा मिल्की सा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है ये मुझे भी दिख रहा है, लेकिन क्या अमोनिया डालने से इस मिल्की में किसी अलग कलर का प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगा? इस पे थोड़ा ध्यान रखते हैं। शायद वो प्रोड्यूस होके भी चला गया, कोई बात नहीं। शायद अच्छा, ये सारे तजर्बात मैं क्यों कर रहा हूँ, एक बात को समझ लीजिएगा जरा प्लीज। मुझे पता है कि अगर इसमें ब्लू प्रेसिपिटेट आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कुछ बातें थोड़ा सा आप अपना थ्योरेटिकल सपोर्ट के साथ भी कीजिए। अगर मुझे मालूम है कि ब्लू प्रेसिपिटेट इसके अंदर आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गया कि इसमें कॉपर है। अब कॉपर का ऑब्जर्वेशन अमोनिया के साथ भी आपको पता है, इट गिव ब्लू प्रेसिपिटेट with ammonia and the PPT dissolve in excess of ammonia giving us a dark blue solution। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं सिर्फ एक तसल्ली कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए, बच्चे को कुछ दिखा पाऊँ। अभी इसमें एसिड है, एसिड के साथ दोबारा से वही ये फिज कर देता है, ये आप देखें एसिड के साथ वापस से फिज कर रहा है, ये फिजिंग हो रहा है ट्यूब के अंदर। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें ब्लू प्रेसिपिटेट बच्चे को दिख जाए, मगर शायद नहीं दिख पा रहा, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हाई होने की वजह से। फिलिंग इसके अंदर कंटिन्यूसली हो रहा है, छोटे छोटे बबल इसके अंदर हमें दिखे जा रहा है कि इसके अंदर बबल प्रोड्यूस हो रहा है। खैर कोई बात नहीं। अब देखिए ये ग्रीन सा है, थोड़ा सा इस चीज को तो एटलीस्ट समझो बच्चों कि ये ग्रीन सा लिक्विड है, ये देखो। अब देखो कुछ हद तक मैं शायद बच्चों को दिखा पाऊं, शायद। ओह, वापस से डिजॉल्व हो गया। आई रिपीट, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि कुछ ब्लू, बस टॉप पे देखना, क्या कोई ब्लू, ये देखो देखो देखो, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट इसके टॉप पे जनरेट हुआ बच्चों। सी, अगर दिख पा रहा है तो ब्लू प्रेसिपिटेट इसके टॉप पे कितना क्लियर जनरेट हुआ। सी, ब्लू प्रेसिपिटेट एट द टॉप। फिर थोड़ा सा अमोनिया डालता हूँ, शायद थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। अब तो वो डिजॉल्व भी हो गया बेचारा, प्रोड्यूस हुआ था और फिर वो डिजॉल्व हो गया। देखो शायद कुछ ब्लू दिख पा रहा है अच्छे से। सी, लाइट्स का कुछ प्रॉब्लम। सी, ब्लू पीपीटी इसके टॉप पे बिल्कुल रिंग आ रहा है, सही है। अब इस ब्लू पीपीटी के बाद हम क्या करेंगे, अब मैं इसके ऊपर एक्सेसिव टेस्ट कर देता हूँ इसी अमोनिया का। व्हाट हैपन व्हेन वी आर इन एक्सेस। सी, कितना अच्छा ब्लू पीपीटी, अब थोड़ा ज्यादा वाज़ेह हुआ ब्लू, कितना क्लियर हो गया, अब तो भाई बहुत क्लियर है। और अब इसको हम जानते हैं कि कॉपर की ब्लू पीपीटी विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस, तो ये मैंने, यही मेरा एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन था। थोड़ी सी मेहनत के बाद मैं आपको ऐसा दिखाने में कामयाब हो गया, यही होना चाहिए था। अच्छा जी, इसकी ऑब्जर्वेशन लिख लेता हूं मैं। आप लोगों ने देखा, अगर ये सब कुछ ना भी करते, अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैंने कहा कि इफ यू गेट ब्लू प्रेसिपिटेट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज insoluble in excess, it means there is copper ion. So if you want to perform it with ammonia, you can, or otherwise leave it and just write the observation which is expected once you are sure that it is copper. Aqueous ammonia, blue PPT, dissolves in excess a dark blue solution obtained. Test 3, add a piece of aluminum foil in this sample. अच्छा जी, मैंने ये सैंपल लिया. इस सैंपल में मुझे एल्यूमिनियम का एक पीस डालना है. ये 1 सेंटीमीटर सैंपल ले लिया. इसके अंदर एल्यूमिनियम का पीस डालना है. और देखते हैं भाई क्या. सी बबल्स, डू यू ऑब्जर्व द बबल्स? बबल निकल रहे हैं. एल्यूमिनियम मेटल के साथ एक रिएक्शन हो रहा है. ट्यूब इज गेटिंग वार्म. ट्यूब गर्म हो रहा है. अच्छा, अब देख लेते हैं कि कहीं ये ऑक्सीजन गैस तो नहीं. या कहीं हाइड्रोजन गैस तो नहीं. मैंने इस ट्यूब को, इसके अंदर गैस जमा किया थोड़ा, कॉपर और एल्यूमिनियम वाला. एक बर्निंग स्प्लिंटर लिया और थोड़ा सा वेट करता हूँ कि इसके अंदर एक अच्छा सा प्रेशर जनरेट हो जाए मेटल के साथ. तो देखो सॉल्यूशन का कलर बच्चों देखिएगा कि वो ग्रीन से कलरलेस होता जा रहा है. See, it pops on burning. अगर आपने गौर किया, ट्यूब थोड़ा सा वार्म हो गया है, कुछ ज्यादा गर्म हो गई है ट्यूब. वापस से what I am doing, I am just collecting the gas. मैं इसको कलेक्ट कर रहा हूँ थंब रख के इसके ऊपर. रिएक्शन थोड़ा स्लो हो गया है. मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ. मैं इसको दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ. इसके अंदर मैंने वापस से एल्यूमिनियम लिया और इसमें डाल के छोड़ा. थोड़ा सा सैंपल डाला. रिएक्शन को फास्ट करने के लिए ग्रीन लिक्विड था. ग्रीन के साथ साथ आप देखिएगा कि वो उसका कलर चेंज हो रहा है. मैंने इसके ऊपर थंब रख लिया लाइक दिस. थंब रख चुका हूँ. थंब रख के मैं इसके ऊपर जरा, इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं बहुत बेहतरीन से. मैं गैस को कलेक्ट कर रहा हूँ. गैस का प्रेशर अच्छा खासा हो गया है. अब मैं इसके ऊपर इसे जरा टेस्ट कर लेता हूँ कि इफ इट पॉप्स ऑन बर्निंग. देखिएगा जनाब, गैस है. सी सी दिस इज कॉल्ड पॉप्स ऑन बर्निंग. सही है. इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इज बीइंग रिलीज इन द ट्यूब. दोबारा से बबल्स आते हैं. मैं फिर से वेट करता हूँ कि थोड़ा सा इसमें प्रेशर जनरेट हो गया प्रेशर जनरेट. बहुत थोड़ा सा हल्का सा साउंड होता है. अच्छा जी, सॉल्यूशन देख लीजिएगा बच्चों. पिंक हो रहा है. इसमें कॉपर डिपॉजिट हो रहा है. इसी सॉल्यूशन के कलर को बहुत गौर से देखिएगा. ट्यूब रेडिश हो गया है. देखिए रेडिश, जैसा रस्ट लाइक होता है ना, रेड 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 ऐसा कलर हो गया इस ट्यूब का. बच्चों इसकी खास वजह है कि इसके अंदर कॉपर आयन है और एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में जो एल्यूमिनियम है अब वो सॉलिड से आयन बन गया और जो कॉपर है वो आयन से एटम बनता जा रहा है. तो ट्यूब पिंक हो गया, रेड हो गया. अच्छा, मैं होप कि ये कलर सबको दिख रहा होगा. ये रेड हो गई है इस वक्त की. सही.
रिएक्शन हो जा रहा है, टेस्ट ट्यूब वार्म हो जा रही है, तो मैं इसके मिक्सचर को फेंक देता हूँ। अच्छा जी, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। Add a piece of aluminum foil, a gas released that pops on burning, पहली बात लिखी। और दूसरी बात, ग्रीन सॉल्यूशन डीकलराइज्ड। सही है जी, ये भी हुआ था। और पिंक सॉलिड अपीयर्ड। ऐसे लिखोगे ना बात तो फिर अच्छे से बन जाएगा, पढ़ने वाले को भी समझ में आएगा कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन बनी थी और क्या क्या बच्चे ने लिखा। अब पढ़ोगे तमाम चीजें। पेल ब्लू insoluble in excess, pale blue dissolved in excess, a dark blue solution obtained. What had happened with aluminum foil? A gas released that pops on burning. Green solution decolorized. Pink solid appeared. The formula of the metal ion in FB7 is Cu+2. अच्छा जनाब, यहाँ तक बताई। अब इस वाले पार्ट को समझ लो। FB8 is an acidified aqueous solution containing a metal cation which is listed in the qualitative analysis notes. Carry out the following test for each. Use a 1 cm depth of FB8 in a test tube. Record your observation in table 3.2. Identify the metal ion present in FB8. Aqueous sodium hydroxide, acidified potassium 7 manganate. Let's take 1 cm depth of FA8, which is FB8. FB8 का 1 centimeter depth ले लेते हैं, and then let's add sodium hydroxide, the sample. FB8 1 centimeter depth, sodium hydroxide. Drops of green precipitates. If you could observe, green precipitates. एक्सेसिव एडिशन करके देख लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक, क्लियर ग्रीन प्रेसिपिटेट। अब ऐसा ग्रीन प्रेसिपिटेट वी नो कि ये आयरन 2 का होता होगा, और बच्चे जो है वो बातों का ग्रे में कंफ्यूज होते हैं कि अगर ग्रे भी होता है तो फिर वो तो क्रोमियम का भी हो सकता है। तो भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इफ इट टर्न्स येलो इट मीन इट इज ऑफ आयरन। ग्रीन बोलोगे, ग्रे ग्रीन नहीं बोलोगे। थोड़ा सा वेट कर लो कि अगर इसका टॉप यहां से ये येलो होने लग जाए तो मामला सेट हो जाएगा। देखो जरा गौर से, बहुत तवज्जो से देखो बच्चों। ये इसके ऊपर वाला पार्ट यहाँ से ब्राउन होना शुरू हो जाता है। जब ये ब्राउन होना शुरू हो जाता है तो समझ जाओ द प्रेसिपिटेट इज ग्रीन। और अगर ये ब्राउन ना हो यहाँ से तो समझ जाना द प्रेसिपिटेट इज ग्रे ग्रीन। तो अभी तो ये क्लियर, यहाँ से देखो येलो 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 से होते जा रहे, छोटे छोटे से जर्रात, लिटिल पार्टिकल टर्निंग ब्राउन येलो। सही हुआ, क्लियर हुआ। अब ये ग्रीन प्रेसिपिटेट बोलेंगे, इसको ग्रे ग्रीन नहीं बोलेंगे। और हम जानते हैं इफ इट इज ग्रीन पीपीटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड लेट अस ऐड इन एक्सेस। I know one thing, it will never dissolve in it because it's of iron. Iron 2 hydroxide is insoluble. So, um, green PPT turning brown in air, first part, and insoluble in excess. Right. Now, I'll take one more tube. And the last test going to perform. FB8 1 centimeter depth, and add potassium 7 manganate, a few drops of
is potassium 7 manganate, KMnO4 purple colored liquid. I'm adding drops and observe what happens to a drop. See, decolorized. I added pink color, it is decolorized. Decolorized. So let's write the observation. At a 1 centimeter depth of acidified aqueous potassium manganate, purple color of KMnO4 decolorized. A colorless solution obtained. So the formula of the metal ion FB8 is obviously Fe positive टू Fe positive टू था, ग्रीन प्रेसिपिटेट दे रहा था, Fe2 पॉजिटिव KMnO4 से रिएक्ट करवाते पोटेशियम 7 मैंगनीज इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. उसने क्या किया, उसने KMnO4 ने आयरन 2 को आयरन 3 में कन्वर्ट कर दिया और खुद जो है वो Mn7 प्लस से Mn2 प्लस के फेज में चला गया, डीकलराइज हो गया, आयरन को आयरन 3 कर दिया. अच्छा जी, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन बिटवीन द मेटल आयन Fe8 एंड एसिडिफाइड पोटेशियम. हमने पहले बता दिया आपको. एक्सप्लेन हाउ योर ऑब्जर्वेशन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. FB8 contains Fe2 plus that gave green precipitate with NaOH aqueous. So it was Fe2 plus, and state the type of reaction. It was redox. I forgot to write the nature of the reaction. First write it was redox. FB8 containing Fe2 positive that gave green PPT with NaOH and was turned to Fe positive 3 where KMnO4 as an oxidizing agent reduced itself, got decolorized, and turned to Mn positive 2. देखो बच्चों, you can write this whole, पूरी कहानी लिख दो. Redox reaction. First of all, write the nature of the reaction. Redox FB8 contains Fe2 positive that gives green precipitate with NaOH and was turned to Fe3 positive where KMnO4 as an oxidizing agent reduced itself, got decolorized and turned to Mn2 positive 2. अच्छा, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी. एक बात ये वाला जो पार्ट रह गया था, FB7 contains a metal cation which is half. जनरली ये वाला पार्ट जो है, मैं इसको तरह कहीं बर्नर जल रहा है लेकिन उस पर फ्लेम का थोड़ा सा प्रॉब्लम. अच्छा बच्चों, देख लो पहले FB7 जो था इसका इनिशियल कलर देख लो, इट्स ग्रीन पाउडर. सही है, लाइट ग्रीन कलर का पाउडर है FB7. इसे हीट करना है, हीट करने के बाद इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उन्हें लिखना है. मैं इसे हीट कर रहा हूँ फ्लेम के ऊपर, आपको दिखा नहीं पड़ रहा पूरा, वो शेप सब चेंज करना पड़ जाएगा, डायरेक्शन इसका, प्लेसमेंट कैमरा. तो मैं आई जस्ट हीटिंग इट. उन्होंने बोला पहले इसको जेंटली हीट कीजिए और फिर उसको स्ट्रांगली हीट कीजिए. जेंटली हीट करने के ऊपर पहले तो ये गौर करते रहना बच्चों कि इसके ऊपर यहाँ पे कहीं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो नहीं आता. तो मैंने देखा कि इसके ऊपर यहाँ इस ट्यूब पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आया है. याद रखना, आप इसे हल्का सा हीट करो और फिर देखो कि यहाँ पे क्या स्टीम प्रोडक्शन. वो वापस से दिखाता हूँ. देखना तो बच्चों थोड़ा ज्यादा अच्छे से विजिबल हुआ होगा. यहाँ से ट्यूब क्लियर है, इसके ऊपर देखो यहाँ से
ये सारा वाटर का ड्रॉपलेट बेटा इसके अंदर आया है, अगर देख पा रहे हो तो यहाँ से क्लियर है, और ऊपर यहाँ पे सारा वाटर कंडेंस हो रहा है इसके, सही है। तो ये ऑब्जर्वेशन हम लिखते हैं बेटा, इसको इग्नोर नहीं करते। तो कंडेंसेशन हो रहा है इसके ऊपर ट्यूब में, इसे लिखना पड़ेगा। अब मैं मती इसको और हीट करता हूँ, फिर देखता हूँ और क्या होगा। कंडेंसेशन आई गेस कि बहुत अच्छे से बच्चों को दिखा होगा। वाटर के ड्रॉपलेट्स इसके अंदर आए हुए इस ट्यूब में, यहाँ पे देखो ये वाटर के ड्रॉपलेट्स आए। व्हाइट बैकग्राउंड पे तो और भी नहीं दिखेगा शायद। अब अगर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स क्लियर हुए बच्चों, देखना थोड़ा बहुत, सही है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स को हमें इग्नोर नहीं करना, वी नीड टू ऑब्जर्व एंड राइट दैम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मजीद थोड़ा सा वार्म कर रहा हूँ, और पहले इसके अंदर जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं उनको हीट करके उन्हें रिमूव करवा देंगे इसके अंदर से, और फिर देखते हैं कि क्या इसके अंदर मजीद कोई चेंज आ रहा है, तो मैं आपसे वो भी अभी शेयर करता हूँ। आमतौर पर याद रखिएगा, व्हेन यू आर हीटिंग सम सॉलिड, a thermal decomposition may occur over there, water crystallization can be there। अब देखो ज़्यादा क्लियर हो गया बच्चों, देखो वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना ज़्यादा क्लियर हो गया, तो सारा वाटर जमा हो रहा है, ये वाला देखते हैं, बहुत क्लियरली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस ट्यूब पे देखो यहाँ पे टॉप जा रहा है। ये दिखाना चाह रहा हूँ, इसे देखा करो, जब भी किसी सॉलिड को हीट करो तो उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन लाजमी देखा करें। अच्छा, इसे हीट कर रहा हूँ, वाटर क्रिस्टलाइजेशन को खास तौर पर ऑब्जर्व किया कीजिए। इसके अलावा when it is being heated strongly, do test for the CO2 and O2। उसके लिए बर्निंग स्प्लिंटर आप ले जा सकते हैं। इफ देयर इज CO2 इट विल एक्सटिंग्विश, एंड इफ देयर इज O2 इट विल रिलाइट द ग्लोइंग स्प्लिंटर। स्ट्रांगली हीट जब सॉलिड को किया जाएगा तो उसके ऊपर बच्चों ये टेस्ट लाजमी कर लिया कीजिए। मैं इसमें एक टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। टेस्ट ट्यूब को हीट कर रहा हूँ, और इसके अंदर आपके सामने मैं अभी गर्म ट्यूब ले आता हूँ, उसमें आपको ये भी दिखाता हूँ कि इसमें हुआ क्या। ये बहुत गर्म ट्यूब है, मैं इसको ले आया, और ये देखो ये ग्लोइंग स्प्लिंटर इसके अंदर लेके गया, ना जली नहीं तो ग्लोइंग स्प्लिंटर तो उल्टा बुझ गई। अभी देखो मैं इसके अंदर जलती हुई मैजिस्टिक लेके आऊंगा, बर्निंग स्प्लिंटर, और देखते हैं कि फिर उसके बाद हमारे साथ क्या ऑब्जर्वेशन हम इसके साथ बना पाएंगे अपने। अभी ये हीट हो रहा है, देखो मैं इसको बहुत ज़्यादा हीट किया, और अब ये बर्निंग स्प्लिंटर इसके अंदर, ये देखो बच्चे बुझ जाता है ना, इट एक्सटिंग्विश। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसके अंदर बुझ जा रहा है फायर। इट पुट्स ऑफ द फायर, गैस रिलीज दैट पुट्स ऑफ द फायर, इट डज नॉट relight a glowing splinter। ये ऑब्जर्वेशन एक बना। सॉलिड के अंदर से वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकला, ये एक ऑब्जर्वेशन बना। और अभी तीसरी बड़ी मजेदार सी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने लगा हूँ। ये देखो बच्चों, फाइनली आई गॉट दिस। ग्रीन कलर का पाउडर था, ब्लैक कलर का पाउडर रह गया, इट टर्न टू ब्लैक पाउडर। देखा बच्चों, तो ग्रीन पाउडर टर्न टू ब्लैक पाउडर, a gas evolved that extinguishes the fire, and a water of crystallization। तो हीटिंग की हम ये तमाम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। नोट कर लेता हूँ। स्टीम produced and condensed on the tube, gas released that extinguishes fire
green solid turned to black powder. सिंपल आसान सी ऑब्जर्वेशन थी, इस ऑब्जर्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे और हमें लिख के दिखा दिया। These were the observations. उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। All the things were performed before you except that cheating one, फ्रेम थोड़ा सा दूर था इसलिए मैं उससे परफॉर्म नहीं कर सका और पूरा क्वेश्चन आराम से बच्चों हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होती है। क्वेश्चन ही तो हुआ। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।